How important is that? In the air, gone! Not that important, he's gone the next ball! Brilliant from Amir! Pakistan cricket at its best, 1 minute down. Welcome to the postmortem of the Champions Trophy 2025. I think Pakistan's Champions Trophy lasted less than a test match. A test match goes 5 days. I don't think this has gone 5 days. So comprehensively beaten by India. Uh, let's start right at the beginning, at the toss. Would you have batted first if you won the toss? I think we spoke about this in the preview that Pakistan should have, their only chance of victory was to sort of try and chase a target and limit India. Go ahead, AZ. And also, AZ, congratulations for doing the radio in person for the ICC for at the venue for Pakistan India. How was that experience before we start off? Thank you so much, Sadiva. Yeah, it was a great experience. Had a lot of fun. Of course, जब ऐसा crowd हो, electrifying crowd हो, तो मजा जरूर आता है. Of course, it was about 80% blue. So we were heavily outnumbered in the com box and in the stands. But it was a thrilling experience, of course, just to mingle with the likes of Wasim Akram, Waqar Yunus, Ravi Shastri, and everywhere you look, you found somebody that you recognize, that you grew up idolizing, watching them play, and of course, dreaming of one day rubbing shoulders with them in any sort of capacity. So it was a great experience. And unfortunately, the match did not pan out, of course, as we expected. Or I think we did expect that India हमें comfortably one-sided तरीके से हमें मार देगा. Going to the toss, I think I would have initially definitely said कि यार आप bowling ले लो, try to restrict India. Maybe they can fumble the bag, get out around 260, 270, and maybe that you have a sliver of a chance of chasing that down. But the way the pitch played, I thought there was absolutely nothing wrong with it. We should have batted better than that. We were so timid. We were so within our own shell. From overs 11 to 20, you only make 27 runs. यार ये उधर क्या मैल्कम मार्शल और डेनिस लिली और ऐसे लोग बॉलिंग करा रहे हैं. मतलब इतना विद इन योर शेल, इतना कंजर्वेटिव, इतना डिफेंसिव होके आपने खेला. The problem with Pakistan is when they take on India, we play the man, we do not play the ball. We let the opposition overawe us with the support in the stands, with the big reputations, with the big IPL contracts, and we just cower in front of them. And even though Rizwan and Saud Shakil played a decent hand, 104 runs की पार्टनरशिप उन्होंने हमें दी, जहां हमने ऑन स्लॉट करना था, जहां हमने गियर्स चेंज करनी थी, they fell at the worst possible time. ठीक है रिजवान आउट हो गए, बट साउथ शकील, व्हाट वर यू डूइंग? व्हाई आर यू ट्राइंग टू पुल हार्दिक पांड्या फ्रॉम आउटसाइड ऑफ टुवर्ड्स स्क्वायर लेग? दैट इज व्हाट रोहित शर्मा वांटेड यू टू डू, एंड यू प्लेड एग्जैक्टली इनटू द हैंड्स. और उसके बाद जब प्रेशर पड़ा, then the familiar old story, Pakistan imploding in their batting. They lost 8 wickets for just 90 runs, and India were, of course, never seriously going to be challenged with the score of 242 on the board. There was absolutely no chance. Even though our bowlers bowled very, very badly, they were over pitching the ball. They were giving those drive balls. मतलब आपने बिल्कुल एनालाइज नहीं किया कि मोहम्मद शमी और हर्षित राणा, जिन्होंने शुरू में जब पिच अप किया तो बाबर आजम ने भी उनको पनिश किया था. यार, रेन इन योर लेंथ, बोल कंजर्वेटिवली, बोल ड्राई, try to frustrate them. Naiji, in the end, we're looking for those big booming swing deliveries. Shaheen Shah getting carted. ठीक है, आपने रोहित शर्मा को एक जाफा गेंद डाली, but in your initial spell of 5 overs, you conceded 43 runs. India made 60 odd in the power play. और उसके बाद ठीक है, रोहित शर्मा अपनी intent दिखा गया. He set the tone, and after that, it was really smooth sailing. And of course, the age-old problems: poor fielding, dropped catches, bad bowling changes, bad lines, bad lengths. It's always the same old story when it's India versus Pakistan in a one day game. Gurmeet? हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था, ये पिछले क्या 13 साल का ट्रेंड है अभी के. आप जब भी पहले बैटिंग करते हैं आपको पता नहीं होता कि आपने स्कोर क्या रखना है. चाहे वो T20 हो या ODI हो, जब भी इन्होंने पहले बैटिंग की है, यही फ्लो रहा है इनिंग्स का. आप थोड़ी विकेटें लूज करते हैं, आप कंसोलिडेट करते हैं, आप एक्सेलरेट करने जाते हैं तो आप आउट हो जाते हैं. राइट, लाइक आज भी आई थिंक ऊपर से ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कॉम्बिनेशन भी कैसी है. आपने आपका फिफ्थ बॉलर जो है वो आप दो पार्ट टाइमरों से उनके ओवर निकलवा रहे हैं, राइट. तो इट्स क्लियरली बॉलिंग इज इन स्ट्रेंथ. आई एम नॉट सेइंग आपकी बैटिंग को इतनी स्ट्रांग है, लेकिन आपकी बॉलिंग भी इतनी नहीं है. कोई भी अबरार के अलावा कोई भी बॉलर अच्छी नहीं करा रहा. तो कंसिडरिंग हिस्ट्री, कंसिडरिंग आपकी बॉलिंग इतनी खास नहीं है, आपको विकेटें लेने नहीं आती हैं, डिफेंड करना, और ऊपर से आप दुबई में खेले भी नहीं थे तो आपको नहीं पता वो पिच कैसी है.
राइट, सेकंड बैटिंग करने में आपको ये बेनिफिट होता है कि आप देख लो कि दूसरे कैसे खेल रहे हैं, बॉल फंस रही है, बाउंस हो रही है, आउटफील्ड कैसी है, यू कैन प्लान योर इनिंग्स बेटर इन द सेकंड इनिंग्स। तो वो तो ऑब्वियसली आई थिंक बहुत बड़ी गलती थी। लाइक एज ही सेड, आई थिंक पाकिस्तान वाज इन अ डिसेंट पोजीशन कि थोड़ा बेहतर कर सकते थे, उसमें ज़्यादा अभी नहीं जाऊंगा। बट एज योर डायरेक्ट क्वेश्चन, नो, टेरेबल डिसीजन इन माय ओपिनियन। I was surprised because, like you said, they haven't played in Dubai recently. India's had that advantage, and your only chance was that. Uh, the start was was not great because I think they had 28 dot balls in the first 6 overs. You mentioned 27 runs from overs 10 to 20, but only still, if you go up to overs 25, only 44 runs between overs 10 to 45. So again, you're playing at less than three and over. And at that point, the game is gone. You have no chance of making that up. Rizwan, with his classic self-preservation innings, scored just enough to keep his place, not enough to actually take risks. It was very disappointing. And Permeet, your point to fifth bowler, Pakistan's played 5 ODIs in the month of February. That fifth part-time bowler has bowled about 60 overs, taken 2 wickets at an average of 165. It's just squad planning has just been horrific. Go ahead, Permeet. एक्चुअली सो डिसीजन भले गलत था, लेकिन 30 ओवर मार्क पे दे वर 129 फॉर 2, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, विच एक्चुअली इज नॉट बैड, राइट। उन्होंने, जैसे एजी ने बोला, 11 से 20 में उन्होंने बहुत कम रन बनाए, बट आपका फर्स्ट पावर प्ले और आपका ओवर्स 21 to 30 दे वर डिसेंट इनफ। क्योंकि इफ यू थिंक ऑफ इट, इफ यूर 130 आफ्टर 30 ओवर्स, even if you go at 6 and over, you'll get 250, right? और थोड़ा आप 7 and over कर लें, जो आप, you have 8 wickets in hand, right? Not go too absurd. 7 and over for the last 20 is very gettable. तो आपका 270 हो जाता है, राइट। आई थिंक पाकिस्तान ने क्या किया, मे बी दे एम्ड मोर देन 270, जैसा मुझे लगा, राइट, कि रिजवान आउट हुआ, विच वॉज फेयर, ही ट्राइड टू एक्सेलरेट, लेकिन उसके साथ ही साउद, उसके बाद ही, मतलब इतनी कोई जल्दी नहीं थी। उसका एक ओवर में कैच छूटा, राइट, नेक्स्ट ओवर में उसने चौका मारा, कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो लेग साइड की 75 मीटर की बाउंड्री पर छक्के की ट्राई करें, बट करते हुए आउट हो गया। वेरी स्टूपिड क्रिकेट। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि वो 300 टारगेट कर रहे थे, 315 कर रहे थे, क्योंकि अगर आप 280 टारगेट कर रहे थे, विच इज़ व्हाट रिजवान सेड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, you didn't need those shots, right? Last 20 overs में going at 7 and over, you don't need to be attacking Pandya. Your strength is spin, स्पिनरों के बहुत ओवर पड़े हुए थे, आप वेट कर लेते। तो प्लानिंग में बहुत थोड़ी वो, प्लानिंग कहें या वो साउथ शकील की अपनी गेम सेंस कहें, उस वक्त बहुत ही amateurish. Like South Shakil isn't young. He played the under 19 World Cup in 2014. तो 11 साल हो गए. He's about 30, I guess, late 20s 30s. तो उसको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, राइट। पेसर को जानबूझ के, द रीजन हमारे ओवर 11 से 20 में स्कोर कम था, क्योंकि रोहित शर्मा डिलेड पुटिंग ऑन द स्पिनर्स बिकॉज ही नोज साउथ इज मोर कंफर्टेबल अगेंस्ट देम। तो यू क्लियरली नो you're नॉट स्ट्रांग अगेंस्ट द पेसर्स, तो क्यों आप पांड्या को अटैक करें, हु वाज देयर बेस्ट बॉलर ऑफ द डे, राइट? व्हाई डोंट यू वेट अ बिट? तो वो थोड़ी स्टुपिडिटी थी। बाकी तो हाँ, ये फिफ्थ बॉलर वाली स्ट्रैटेजी, ये भी मैंने कॉल आउट किया था कि ये तब ही चल सकती है अगर आपको दूसरे एंड से विकेटें मिल रही हैं फ्रॉम लाइक हारिस रऊफ। और हारिस रऊफ विकेटें, आई मीन उसके कैच छोड़ गए वॉट एवर, बट ही वॉजंट इवन बॉलिंग इकोनॉमिकली। तो वहाँ आपकी वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई। प्लस टारगेट वो छोटा था। अगर अगर लेट्स से आप फर्स्ट बॉल करते, राइट, एंड इंडिया वाज द वन हु हैड टू टेक द इनिशिएटिव, दे माइट हैव ट्राइड अ बिट मोर शॉट्स अगेंस्ट खुशदिल। पिच फंस रही है, आउट आउट हो सकते थे, बट दे डिडंट नीड टू अटैक खुशदिल। क्यों अटैक करें? 10 ओवर में 70 बन गए हैं, बाकी 240 का टारगेट है, कोई अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी, और उन्होंने अटैक नहीं किया। कोहली क्या करता था, बस जब भी पेसर आता था, उनकी पहली बॉल पे बाउंड्री निकालता था। दैट meant ही हैड नो रीजन टू अटैक खुशदिल और अब्रार एट ऑल। तो या आई थिंक इज जस्ट सिंपल प्लानिंग मिस्टेक्स। जो ये स्पिनर की स्क्वाड कंस्ट्रक्शन की लास्ट आपने बात की, आई थिंक इट्स नॉट एज इजी एज पीपल मेक इट आउट टू बी कि आप बस दूसरा स्पिनर डाल दें। Yeah, we don't have the benefit of three left arms the way India has, right? We don't have those three आई थिंक world class. आई थिंक आपके पास स्पिनर फिर भी हैं इन द डोमेस्टिक सर्किट,
but do you have some? You don't have all-rounders. The Right. only Who can all-rounder bat you as well, like exactly Kuldeep because you and don't want your tail to start at right, seven. seven. Right? The only person that comes to mind is Arafat Manhas, who I'm not sure if he has even made his debut yet for Pakistan और उसने ना PSL इतनी खेली है ना डोमेस्टिक लिस्टें इतनी खेली है इमर्जिंग टीम के साथ घूमता फिरता है तो उस if you wanted to have an all-rounder he is the only option but the reality is you don't have any all-rounders, right? So then you have to go with this 4+2 part-timer strategy, which is going to backfire. So what that means is probably find those all-rounders, right? Even though if they're a bit raw and groom them because there is no other way to succeed, whether it's ODI or T20 cricket. क्योंकि आपको एक जगह पे आप फिर वीक पड़ जाते हो इंडिया के पास 3 प्लेयर थे जो बॉल आपको 10 ओवर भी दे सकते हैं और 40-50 रन भी मार सकते हैं आपके पास एक भी नहीं था Is anything to add? नहीं, आई Harmeet's थिंक points? Parmeet has covered all the bases there. That is always going to be the compromise जब तक आप अबरार को as a front line spinner, as a non batter खिलाओगे तो definitely आपका balance तब से ही out है. And we've seen that even since the tour of Australia के भाई our batting depth is absolutely nil. And to be fair, Pakistan is not the only team that is struggling with that problem. इंग्लैंड भी एक्सपोज हो गई थी जहां ब्राइडन कार्स को थोड़ी सी मार पड़ी जहां जोफ्रा आर्चर pulled up lame. They had absolutely nowhere to turn to. They've always had to rely on Liam Livingston to fill in as that fifth bowler. जो रूट को भी उन्होंने इस्तेमाल किया लेकिन वही बात है कि that has been an issue for many teams. It's not just us, it's just India that is blessed in that department. Even Australia has struggled with that fifth bowler problem. It's only maybe the Kiwis who have a good combination of Bracewell and Santner and Glenn Phillips as well, जो उनको regularly overs दे रहे हैं. लेकिन फिर जब आपको पता है कि ये एक आपका weak point है, तो आगा सलमान जो भी हो, जैसे भी हो, हर मैच में उसको 7-8 ओवर आपको डालने चाहिए. You prepare him for that role. You prepare खुशदिल शाह for that role or whoever else you wanted in that role. कामरान गुलाम को भी ये लोग घूमते फिरते रहे उसके साथ उसको भी इक्का दुक्का मैच दिया उसको प्रिपेयर नहीं किया. इरफान नियाजी को उन्होंने नंबर 7 पे यूज किया. इज अ प्योर बैटर. उसको आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम बट एटलीस्ट अगर आपने उसको रन देना ही था कि भाई तुम ही खेलो फिर साथ पे. खुशदिल शाह को उन्होंने अब जाके ट्रांसप्लांट किया इन दैट ट्राई सीरीज बिकॉज ऑफ हिज बीपीएल फॉर्म ऑफ ऑल थिंग्स. एंड टू बी ऑनेस्ट ही हैजंट बीन बैड. ही मेड अ फाइटिंग 50 वर्सेस द कीवीज. ही डिड व्हाट ही कुड इन हिज लिमिटेड skill set. He did what he could today, but he had to bat what 12 overs with the tail. तो वो बंदा करे तो फिर क्या करे. So that ODI team has always been broken. और वही बात है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बैटिंग की टॉप सीलिंग थी ना आज भी 1-7 अगर even if they played out of their skins unless Babar Azam produced a blinder which he never does against India. Now it's been कितने मैच 8-9-10 उन्होंने वनडे खेली है इंडिया के खिलाफ and he's got like 250s or 350s. भाई वो बड़ा स्कोर कहाँ है. Today was the ideal opportunity. You're batting first. It's a hottish afternoon. They don't have that much potency. Mohammad Shami already had a tight calf after 3 or 4 overs. हर्षित राणा inexperienced पेसर है. आप हार्दिक पंड्या पे आउट हो रहे हो यार. और हार्दिक पंड्या को हमने पता नहीं क्या ही बना दिया हमारे खिलाफ. He always takes those crucial wickets. Hard length करा के इन लोगों से वो हैंडल ही नहीं हो पाता. So once again, like I was saying, इस टीम की मतलब हाईएस्ट पॉइंट बैटिंग सीलिंग थी कि 280 कर लें और उन्होंने वो तकरीबन प्लेटफॉर्म दे दिया था 151 for 2 इन द 36th to 7th ओवर. आखिरी 13-14 ओवर में जैसे परमीत कह रहे हैं आप 100 रन टांग सकते थे, आराम से टांग सकते थे. तब थोड़ा सा इंडिया पे भी दबाव पड़ता लेकिन उन्होंने नहीं किया. और वही बात जैसे परमीत ने कहा कि इंडिया भी फंबल कर सकता था अगर उनकी बैटिंग फर्स्ट आती. ठीक है, रोहित अपने इंटेंट से क्विक फायर 30-40 भी देता. यू आर नॉट आउट ऑफ द गेम, यू हैव नॉट बीन टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट. इधर उसने जब किया when they only needed 242 to win, फिर द गेम वाज ओवर एंड नाउ पाकिस्तान वंस अगेन सोल सर्चिंग करेंगे. लेकिन वही है, इंडिया पाकिस्तान हो गया, लोग भूल जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे. इट विल बी द सेम ओल्ड. हम फिर न्यूजीलैंड चले जाएंगे 15 वनडे और 26 T20 खेलने के लिए और एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन एंड नथिंग विल रियली चेंज. बस ये हमें खुशी रहेगी कि चलो यार हमारे स्टेडियम तैयार हो गए और चलो अभी ये वक्त आ गया PSL खेलते हैं. Let's move to a different question. So this core of Naseem, Shaheen, Babar, Rizwan, and Haris, to me, they peaked in 2022 Asia Cup semi-final. They beat India. Asia Cup final, they were had Sri Lanka 58 for 5, and then Rajapaksa, of course, did that. That was their peak, and since then it's been a steady decline. 2022 World Cup में Kohli basically ended whatever was left of Haris Rauf. Then, yeah, we lucked into the final, but that was not, there was nothing there. 2023, we basically didn't do anything in the 50 over ODI World Cup. 2024 here in Dallas, just up the road, we lost to the US. And then here we are in 2025. Is it time to move on from this core of 5? Like,
how much more juice can you get out of this core of five? रऊफ के बारे में स्टार्ट करूं तो एजी ख्वाजा तो पहले से ही वाज द ही सॉ द लाइट बिफोर ऑल ऑफ अस सॉ द लाइट 2 साल पहले। तो आई थिंक उसकी एज भी आई थिंक ज़्यादा है, ही इज़ इन हिज 30s। राइट, पेस अभी उसकी ज़्यादा है, इंजरी भी उसको थोड़ी बहुत होती हैं, इतनी नहीं होती हैं। तो देखते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक रऊफ का थोड़ा कम नज़र आता है बिकॉज ऑफ हिज एज। आई डोंट नो हाउ मच ही कैन डेवलप फर्दर। शाहीन नसीम का जो है, आई थिंक द रॉ एबिलिटी इज देयर, राइट, क्योंकि वो कर चुके हैं वो 2021-22 में। आई थिंक जो दूसरे मुल्क के प्लेयर होते हैं, जब भी उनकी कोई इंजरी होती है, वो ये लीगो वीगो में नहीं जाते हैं, कॉम्पिटेंट कोचेस के साथ काम करते हैं और उनका बोर्ड उन्हें डायरेक्ट भी करता है ये करने को, एंड दे कम बैक इन फॉर्म। राइट, पैट कमिंस हो गया, बुमराह हो गया, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं अराउंड द ग्लोब। आपके प्लेयर्स, आई थिंक उनका खुद का एटीट्यूड थोड़ा ख़राब है, स्पेशली शाहीन का, जितना सुनने में आता है ही इज़ ऑल्सो नॉट रिसेप्टिव टू फीडबैक। यू नो, देर इज क्लियर डिफरेंस इन हिज एक्शन नाउ compared to 3 years ago or 4 years ago, बट यू नो शाहीन कोई इंजर्ड नहीं रहा है, वो इंजरी फ्री रहा है कोई 1-2 साल, लेकिन कुछ चेंज हमें नज़र नहीं आई है। तो आई डोंट थिंक यू मूव ऑन फ्रॉम देम। आई गेस टेम्पोरेली यू कुड, राइट, कि आप एज अ बोर्ड उन्हें बोलेंगे भाई हम आपको ये टीम में, पाकिस्तान टीम में नहीं लाएंगे जब तक आप ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना करें। वेदर वो रिक्वायरमेंट किसी रिहैब प्रोग्राम की है, किसी कोचिंग की है, कोई डोमेस्टिक में इतने मैच खेलने की है, वट एवर इट इज़। क्योंकि ऐसे जस्ट प्लेइंग इंटरनेशनल मैचेस, आई डोंट, इट वोंट हेल्प देम गेट टू देयर बेस्ट। स्पेशली शाहीन नसीम की तो कोई इतनी इतनी पीक हमने देखी भी नहीं थी जितना। ही शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, बट दैट नेवर ट्रांसलेटेड इन टन ऑफ विकेट्स। बट शाहीन स्पेशली, राइट, आज उसने एक बॉल तो डाल दी, लेकिन ही वाज बिट गार्बेज फॉर द रेस्ट ऑफ इट। सो I don't think you should ever completely move on from anyone, whether that's a batsman, bowler, regardless of age. That sends a wrong message in the system. बट इनको थोड़े और लोग ट्राई करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अब बैटिंग में जैसे होता है, साइम फखर इंजर हो गए, यू हैव नो वन, राइट। बॉलिंग में भी ये तीन हैं, इंजर हो जाते हैं, क्या हसनैन इज गार्बेज, राइट, मोहम्मद वसीम इज इंजर्ड, हु एल्स डू यू हैव, फहीम अशरफ। तो यू हैव टू ट्राई अदर्स, नॉट बिकॉज दीज प्लेयर्स आर इन द बेस्ट, बट you probably need some more bench strength because Hassan Ali is no longer international caliber. He's done. There is no bench, so you probably need to try other folks. But I don't think you can move on from them क्योंकि इतने आपके पास alternative नहीं है। या आकिफ जावेद, अली रजा, you can probably induct them in like these New Zealand series और ये जिम्बाब्वे के साथ जो भी आपके annual matches हो जाते हैं। लेकिन talent wise, ability wise, this is the best you have for now. You just have to find a way to get them back to what they were a couple of years ago. AZ, future with this core? Sadi bhai, well, they're all relatively young. Of course, Naseem is so-called 24 years old and Shaheen is so-called 25 or whatever they are. मतलब आप +2 +3 इन सब पे लगा दे। The problem is कि यार आप उनको physically देखो, यार they're just not fit. इस टीम में एथलीट कौन है, एथलेटिक कौन है? I can say maybe Shaheen Shah Afridi is naturally gifted to be tall and lean and all that. Naseem Shah heavy-legged. Haris Rauf, he has a paunch. बाबर हैज अ पॉन्च, इमाम हैज अ पॉन्च, में एथलेटिक ही कोई नहीं है। मतलब दे नीड टू सीरियसली नीड टू इम्प्रूव द फिटनेस लेवल्स, आई थिंक 200 फोल्ड। मतलब आप इंडियन फील्डर्स को देखो, ठीक है दे हैड 3-4 स्ट्रैगलर्स अलोंग, क्योंकि वो है कुछ बॉलर होते हैं, कुछ ही होते हैं, लेकिन रवि जडेजा, अक्षर पटेल, बाकी सभी लड़के, श्रेयस अय्यर क्या गजब की फील्डिंग कर रहे थे। द वे दे देयर एनर्जी इन द फील्ड, द वे दे टुक देयर कैचेस, द वे दे सेव दोस बाउंड्रीज, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। दे आर जस्ट नॉट athletic enough to compete at that high level, and of course जब आप athletic नहीं होते तो फिर आपकी sports injuries भी साथ साथ होंगी naturally. You have these niggles, you have these pulls here and there, and they just don't look fit enough to compete at the international level, and there's a yawning gap between their standards and India. Even India is not the fittest team in the world, लेकिन इनके सामने तो वो लोग तो सारे को NBA प्लेयर्स या NFL प्लेयर्स लगते हैं। तो जब तक कि अपने फिटनेस स्टैंडर्ड्स अप नहीं करते, यू विल नॉट हैव दैट एबिलिटी टू सस्टेन द वेयर एंड टेयर ऑफ अ सस्टेन कैंपेन। हम वैसे ही
लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट बहुत ही कम खेलते हैं, ओडीआईस कम खेलते हैं, टेस्ट कम खेलते हैं, इट्स ऑल अबाउट T20 ग्लट। तो फिर इन लोगों को रिकवरी टाइम नहीं मिलता, इन लोगों को ट्रेनिंग टाइम वो इस तरीके से नहीं मिलता, दे जस्ट फोकस ऑन ईदर प्लेइंग T20 आईज फॉर द कंट्री और गेटिंग T20 franchise leagues all over the world, which I do not hold against them. Fair enough, if you can secure the bag, so to speak, आप करो, लेकिन आपकी फिटनेस हमेशा हर जगह कॉम्प्रोमाइज हो रही है, एंड दैट इज पेनफुली ऑब्वियस नाउ। आप इनको देखें, इनकी ग्राउंड फील्डिंग इज पथेटिक, और वही कैचेस नहीं पकड़ पाते बिकॉज दे फील सो मच प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट। तो जब तक ये लोग अपने फिटनेस स्टैंडर्ड्स रिमार्केबली इंप्रूव नहीं करते, आई डोंट सी कि दे परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड गेटिंग एनी बेटर एनी टाइम सून। No, and to your point, the gap is so big. This is not a rivalry anymore. It's a manufactured rivalry just for broadcasters, for Netflix to do documentaries on. This is not a sporting rivalry at any level in modern cricket. I just don't see the desire for this group to become the best of their ability. I think that time was that 2023 when they were close to the mountaintop, and if you really wanted to, you would have dedicated yourself to climbing that mountaintop. Now they're so far removed from base camp, they're basically hailing they're at the level where they're taking a cab just to get to the bottom of the mountain, just to reach there. They're so far away from it. Um, any parting thoughts? There's obviously, there's all these um, stories of how you can potentially still make the semis if New Zealand loses to Bangladesh and we beat, but the campaign's basically over, right? हम्म। या और कैंपेन। वो भी अगर ऐसे भी मर मर के लिम्प कर करके आने का फायदा क्या है? आपको क्या मिलेगा? सेमीफाइनल पे आओगे, दूसरी साइड पे हैं साउथ अफ्रीका एरिया है या ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने आपको फॉरन मार देना एंड यूर गेटिंग डम्प्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट इन द फर्स्ट प्लेस। मसला है कि हर चीज पे हम हमारी शॉर्ट टर्म अप्रोच है। शान मसूद के साथ इन टेस्ट क्रिकेट वी हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म अप्रोच। हाँ जी, डस्ट बॉल्स बना दो, दो स्पिनर खिला दो, आप थोड़ा बच बचाव कर लोगे, शायद जी जाओ। अगर आप टॉस नहीं जीते और अगर उनकी बैटिंग पहले आ गया तो आप वो भी हार जाओगे। तो वो एज वी सॉ वर्सेस द वेस्ट इंडीज, तो हर चीज में शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, शॉर्टकट शॉर्टकट, ये बहुत ही एक पाकिस्तानी फितरत है। आई नो यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस सादी भाई, परमीत तुम भी वेल अवेयर होगे, पाकिस्तानी जो ये फितरत है, वी कीप इनकलकेटिंग दैट इन आवर क्रिकेट एज वेल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमें अपना फलसफा वगैरह चेंज करना, लेकिन थोड़ी तो कोई विजन हो। हर दफा आप हमेशा डैमेज कंट्रोल के बारे में नहीं सोचो। कभी आपने कोई गोरे रख लिए, कभी आपने आकिब जावेद ने अच्छे पिच बना दिया, आकिब को रख लिया, कभी उसको सिलेक्टर बना दिया, वो सिलेक्टर था उसको हेड कोच बना दिया। देयर इज रियली नो किबला दुरुस्त होने वाले पाकिस्तान क्रिकेट का, एंड आई डोंट नो हु इज गोना डू इट, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। ये चीजें आई थिंक पिछले 20 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ कि इट्स ऑल लेसे फेयर, इज जस्ट जो भी हो रहा है जस्ट मूव अलोंग, वेदर इट्स अ गुड टाइम तो ठीक है, इट लास्ट फॉर अ फ्यू इयर्स, वरना फिर बैड टाइम्स मेजोरिटी डोमिनेट कर दे बिकॉज ऑफ द शेयर इनकंसिस्टेंसी इन द डिसीजन मेकिंग। उसको ठीक कौन करने वाला है? ओनली गॉड नोस। हाँ, ये मैं जब भी ये पीसीबी को देखता हूँ या ये क्रिकेट टीम को देखता हूँ, मैं इसको एक कंपनी की लेंस से कभी कभी एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हर इंस्टीट्यूशन होता है, राइट, जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक सर्टेन सेट ऑफ इंसेंटिव्स से, प्रिंसिपल से, वैल्यूज से मोटिवेट होते हैं, राइट। तो आप समझ लें कि जो आपके प्लेयर हैं, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर हो, ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। जब इनके इंसेंटिव ही गलत होंगे तो आप वो रिजल्ट उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो उनकी गलती नहीं है, वो सिस्टम की गलती है। शायद श्योर उनकी गलती भी है, एक सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, but PCB can't complain about the state of the team ke Tayyab Tahir is fat. Well, if he's fat, maybe if you had set some certain standards in the first place, he wouldn't be in the team to begin with, right? तो बात होती है सिस्टम की। अभी जैसे एजी ने बात की कि क्या होगा, आई डोंट थिंक एनीथिंग्स गोना हैपन, बट एक शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है इन चीज़ों को फिक्स करने की। जो अभी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, डजंट लुक लाइक दे हैव एनी इंटेंट ऑफ इम्प्रूविंग थिंग्स लॉन्ग टर्म। व्हाट आई मीन बाय दैट इज के कोचिंग का सेटअप चेंज करें थोड़ा, आप ये केपीके में या वो सिंध में एकेडमी खड़ी करें था, आपके प्लेयर्स के पास रिसोर्सेज हों, या आप ग्रास रूट्स क्रिकेट में चेंज करें, या पिचें चेंज करें, राइट। हर 6 महीने बाद डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज हो जाती है, उसमें इनका इतना ध्यान लगता है नहीं। एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म गेट सम टाइप ऑफ कोच जो थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो, राइट। मुझे अभी तक याद है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था, तब शायद कोई रिपोर्ट्स आ रही थी कि प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट लेना बंद कर दिए हैं, राइट। आई डोंट नो इफ दैट्स स्टिल ट्रू और नॉट, बट इफ यू लुक एट द टीम इट प्रॉब्ली
इज राइट। जैसे एजी ने बोला कि ये रऊफ हो गया, बाबर हो गया, इमाम हो गया, तैयब हो गया, प्रिटी मच एवरीवन ये काफ़ी अनफिट है। सऊद शकील तो मुझे लगता है आज आउट भी इसलिए हुआ क्योंकि वो थक गया था, उसने बोला था कि मैं मारूं या जाऊं। नसीम शाह 3 ओवर करा था, ही इज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, राइट। तो अगेन, मैं आई वाज टॉकिंग टू समवन ऑन ट्विटर अर्लियर, असवन चीमा, के मिसबा को ही वापस ले आओ, राइट। नॉट द मोस्ट मॉडर्न गाय, बट एटलीस्ट उसमें थोड़ा एक टक्के का डिसिप्लिन है इन चीज़ों से रिलेटेड, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो। या ये आकिब जावेद जैसे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं हम सरप्राइज करेंगे, फिर वो जाके इंटरव्यू वगैरह फलाने ढिमकाने देते हैं, टू गेन टू गार्नर पॉपुलर सपोर्ट, ऐसे लोगों में नहीं चल सकते। तो लॉन्ग टर्म तो मुझे इस रजीम के अंदर कुछ नज़र नहीं होता आ रहा। लेकिन शॉर्ट टर्म, ये अगर आप कोई ऐसा कोच ले आए या उसको आप आई डोंट नो जो भी टाइटल दे दें, राइट, कोई सिलेक्टर ले आए ऐसे जो इतने उनके वो जिनको अपनी वैल्यूज पे थोड़ा बिलीफ है, जो उससे थोड़ा हटेंगे नहीं, वो शायद डिफरेंस ले आए। जब दो मिकी आर्थर वाज अ क्लाउन एज अ कोच व्हिच ही शोड ओवर टाइम इन हिज मल्टीपल स्टंट्स विद पाकिस्तान एंड अदर टीम्स एज वेल। लेकिन 2016 में, या जब वो आया था, या 2015 या 16 में आया था आई थिंक। तो वो जब स्टीव रिक्सन भी था, पाकिस्तान फील्डिंग वाज प्रिटी गुड, राइट, बहुत ही इम्प्रूव हो गई थी। फिर वो स्टीव रिक्सन लेफ्ट बिकॉज ऑफ सम पेमेंट इश्यूज इवेंचुअली, एंड सिंस देन वी बीन गार्बेज अगेन। सो फील्डिंग इजंट समथिंग दैट्स लाइक नेचुरल और इनेट इन समवन। एथलेटिसिज्म होती है, थोड़ी जेनेटिक्स के रोल्स होते हैं, बट एक एफर्ट, राइट, एक एक डिवोशन, स्टैंडर्ड इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम, राइट। एंड इन द शॉर्ट टर्म वो सिस्टम सेट करता है, चाहे वो सिलेक्टर हो या कोच हो। तो अगर आप ऐसे मिसबा जैसे बंदे को दोबारा ले आए, या कोई और है, आई डोंट नो, मोहम्मद वसीम, राइट, ही व्हेन ही वाज अ सिलेक्टर आई लाइक्ड हिम अ लॉट। ऐसे लोगों को आप दोबारा लाएं तो शॉर्ट टर्म शायद चीज़ें बेहतर हो जाए, बट लॉन्ग टर्म या लाइक आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग लॉन्ग टर्म। दो आप यही कर सकते हैं कि कोई शॉर्ट टर्म में आपके बेनिफिट्स हो जाए, ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप, जहाँ थोड़ी लक ज़्यादा चल सकती है, ऐसा ही कोई टूर्नामेंट आप जीत जाएं तो जीत जाएं, लेकिन कंसिस्टेंटली आई डोंट सी अ पाथ टू इम्प्रूवमेंट। Thank you guys. On that note, we'll what is it? Next is what, 2027 T20 World Cup, right? ओह, 2026 सिक्स 6 में 2026. भी वर्ल्ड T20 आना है। That's in right, India. in India. Which I should clarify, the PCB has said that they won't go to India. So I thought they had a deal. They'll play in Dubai, right? दुबई में well, होगा, Yeah, yeah. वो पाकिस्तान के बोला पास। है, पर Pakistan's वो playing. इसीलिए तो बता रहा हूँ कि वो बोला है कि दुबई में होगा, तो लेट्स सी इफ दैट और एक्चुअली। मजे की बात है, फिर 28 और 32 वाली साइकिल या जो भी आ रही है उसमें तो हमें दूर दूर तक कोई आईसीसी इवेंट नहीं मिलना, अगर ये हालात है। हाँ, 2027 में फिर वो है ओडीआई का वर्ल्ड कप। तो यू हैव 2 years फॉर टू बिल्ड एन ओडीआई टीम आई गेस, हम्म। बट They यू had 5 years since when this Champions Trophy was named to go to Pakistan to build a squad, and even as recently as October, when they were handing out central contracts, they completely chose players in the current squad who they didn't feel warranted central contracts in October. So फिर फहीम अशरफ और खुशदिल शाह के कौन से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट that's है? what I'm saying. But they're in your they were named in the squad. It's just a वही। horrific set of situation. Thank you, हम्म। gentlemen. We'll do it again soon. एब्सोल्युटली।